آج ایسے ہی لوگ مختلف تعلیمیں پھیلا رہے ہیں. میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں جن میں مخالف مسیح کی روح ہے وہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح ایک انسان ہے. یسوع مسیح ایک جس میں ایک انسانی روح بھی تھی، جس میں ایک انسانی روح تھی. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس کا مطلب یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ گمراہ لوگ ہیں. یہ کیا ہیں؟ گمراہ لوگ ہیں. ان چپ کرا میں اس لگے ودا. یہ کیا ہیں جی؟ گمراہ لوگ. اوے اندر سے ٹافی نکال کے اس کو دے، چل بھاگ جا. میں آگے بڑھ جاؤں جی؟ چپ کرا لیا جی، مہربانی تہاڈی. اور اس کا ثبوت وہ یہ دیتے ہیں، ثبوت آپ دیکھ لو، بائبل میں سے دے رہے ہیں ثبوت. وہ کہتے ہیں یسوع مسیح صرف ایک انسان تھا جس میں ایک انسانی روح بھی تھی. اور ثبوت کیا دیتے ہیں؟ لوکا 23:46. ذرا پڑھو ذرا چندہ، لوکا 23:46 کیا کہتی ہے؟ جس میں یسوع مسیح کہہ رہا تھا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں. ہاں پڑھے ذرا پڑھ لو اس کو، پڑھو. پھر دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا اور سورج کی روشنی جاتی رہی اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا. مقدس کا پردہ کہاں سے پھٹا؟ بیچ سے. آگے پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں. اور یہ کہہ کر دم دے دیا. یہ حوالہ دیتے ہیں، یہ حوالہ دیتے ہیں وہ. اور کہتے ہیں کہ جب یسوع صلیب پر تھا اور جب صلیب پر یسوع کو خدا نے چھوڑ دیا، جب صلیب پر یسوع کو خدا نے چھوڑ دیا، اور یہ 7ویں کلمے کی بات میں کر رہا ہوں، تو یسوع نے کہا تھا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا. تو اس وقت جو روح اس نے باپ کو سونپی، یہ میں ایک ایک لفظ کر کے دہرا رہا ہوں، اس نے باپ کو سونپی، وہ انسانی روح تھی. وہ کیا کہتے ہیں جی؟ وہ روح کون سی تھی؟ انسانی روح تھی جو یسوع میں تھی، جو یسوع میں تھی. اور یہ نظریہ سراسر غلط ہے. یہ نظریہ سراسر، اس آیت کا حوالہ دے کر کے اس بات کو ثابت کرنا بہت مشکل ہے. تمہارا باپ بھی نہیں یہ ثابت کر سکتا، یہ بہت مشکل ہے. میں تمہیں بتانا یہ چاہتا ہوں، آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر یسوع میں انسانی روح تھی تو پھر تو وہ مخلوق ٹھہرا نا. پھر وہ کیا ٹھہرا؟ مخلوق ٹھہرا. پھر خدا نہ ہوا، پھر وہ خدا نہ ہوا. اور مسیح یسوع کو مخلوق سمجھنا ایک بڑی بدعت ہے. یسوع مسیح کو مخلوق سمجھنا ایک بڑی، کیونکہ یسوع میں مخلوق روح تو تھی ہی نہیں، مخلوق روح تو تھی ہی نہیں، بلکہ وہ خدا کا ازلی کلمہ تھا. وہ خدا کا کیا تھا؟ جو روح کی صورت میں، ایک ایک لفظ دہرا رہا ہوں، یسوع میں رہتا تھا. اور یسوع ایک جسم تھا، انسانی جسم.
बात की समझ आ रही है? यीशु जो था एक जिस्म था इंसान का, उसमें क्या रहता था? कलमा खुदा। क्या रहता था जी? कलमा खुदा। खुदा का अजली कलमा रहता था उसमें। खुदा का अजली कलमा रहता था रूह की सूरत में। चूंकि खुदा अजली रूह है, लिहाजा उसका कलमा भी हिस्सा रूह होने के नाते, मैंने क्या कहा? हिस्सा रूह होने के नाते वो भी रूह है। और किसका रूह है? खुदा का रूह है। किसका रूह है? लिहाजा कलमा ही मसीह का रूह है। मैं बड़ा शॉर्टकट करके बता रहा हूं। लिहाजा कलमा ही मसीह का रूह है, जो यीशु मसीह में था। जो यीशु मसीह में था। मैं बहुत आसान करके दसन की कोशिश कर रहा ताकि बाज ये ना कहीं साढ़े तो उतों दी गल्लां लंघ गई, समझ ही नहीं आई। नहीं आप सब समझ रहे हैं आप? हाँ जी, तुसी पाज साहब समझ रहे हो जी? तो मैं आपसे अर्ज कर देना चाहता हूं, लिहाजा कलमा ही मसीह का रूह है, जो यीशु में था। पहले वो नबियों पर नाज़िल होता रहा। किन पर नाज़िल होता रहा? और आखिर में मुकद्दसा मरियम के बतन में उसने तजस्सुम लिया और इंसानी मियार के मुताबिक इंसानी मियार के बराबर हो गया। इंसानी मियार के मुताबिक इंसानी मियार के बराबर होकर के वो हमारे दरमियान रहा। और क्यों वो बराबर हुआ? उसे क्या जरूरत है इंसानी मियार की बराबरी करने की? उसे क्या जरूरत थी कि वो इंसानी मियार की बराबरी करे? मूसा ने कहा था मैं देखना चाहता हूं तुझे, मुझे अपना जलाल दिखा दे। मुझे क्या कर? अपना जलाल दिखा दे। तो खुदा ने क्या कहा था? चट्टान दे विच रखे। उन्हें कहा मैं अपना हाथ अगे रखा था, जिन देर तक मेरा जलाल गुजरता रहेगा हाथ नहीं मैं चुकना। जो मैं गुजर जाऊंगा तो मेरा पीछा देख सकना, क्योंकि इंसान मुझे देख करके जिंदा नहीं रह सकता। इंसान मुझे देख करके जिंदा नहीं रह सकता। और चूंकि यीशु ने रूह खुदा होने के बावजूद इंसानों में रहना था। किन में रहना था? इंसानों में चलना फिरना था। लिहाजा उसे इंसानी जिस्म मुकद्दसा के वसीला से ओढ़ना पड़ा। को समझ आउंडा ही दिया? हाँ काकी मिसेज वेद तेन समझ आ रही है? अगर वो रूह खुदा के वो तो पता पौलुस नूं दमिश्क दी राह ते लभ्या, इको ही नजारा वेखत अन्ना हो गया। हुआ अंधा या कि नहीं? अब इसने तो इंसानों में रहना था। अगर ये इंसानों जैसा नहीं बन करके रहता तो जितने इसको देखेंगे वो मर जाएंगे। तो ये मारने के लिए तो आया नहीं, ये तो आया था निजात देने के लिए। किस लिए आया था? निजात देने के लिए आया। और जब ये निजात देने के लिए आया, इसने रहना भी इंसानों में है। इसने रहना भी किन में है? तो फिर इंसानी मियार के मुताबिक आपको ढालना इसे चाहिए था या कि नहीं? चाहिए था, चाहिए था। यही है बात। वो जिस्म, वो दायरा जिसमें अजल से खुदा बाप, बेटा और रूल कुद्दस रहते थे, इसने उस जिस्म में से अपने आप को खारिज किया। और मैंने बताया था, ये कलाम आपको सुनाया था, फिलिपियों 2 बाब की 6 और 7 आयत। ये मैंने सुनाया था आपको कि उसने उस अजली जिस्म में से, जिसमें ये तीनों इकट्ठे रहते थे, इसने अपने आप को खारिज किया। और खारिज करने के बाद इसने इंसानी जिस्म ओढ़ा
इसने इंसानी जिस्म ऐसे ही है जैसे भाई ये जो पादरी जावेद मुगल साहब हैं, ये कपड़े उतार के दूसरे पहन ले। मेरी बात की समझ आ रही है? उन्हें जलाल लाया, जलाल को उतार दिया, इंसानी जिस्म को ओढ़ लिया। मेरी बात की समझ आ रही है? नहीं आ रही? आ रही। अगर वो जलाल उतार करके इंसानी जिस्म ओढ़ करके हमारे पास आता है, ये बात समझने वाली है, समझनी है। हमें ये जिस्म उतार करके जलाल ओढ़ करके उसके पास जाना है। चंदा समझ आ रही है मेरी बात की? वो जलाल उतार करके क्या ओढ़ रहा है? इंसानी जिस्म। क्या ओढ़ रहा है? तो हमने उसके पास जाना है, तो क्या ये इंसानी जिस्म उतार करके जलाल को ओढ़ना है, फिर उसके पास जाना है। समझ आ रही है? अब मैं तुम्हें बताना ये चाहता हूं, वो जो लिखा है ना यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की पहली आयत में, इब्तिदा में कलमा था, कलमा खुदा के साथ था और कलमा ही खुदा था। कलमा ही खुदा था। तो मैं आपसे अर्ज कर देना चाहता हूं, अगर तकरीर करने वाला, बोलने वाला नायाब है, मौलवी नायाब होते मुंह कर, अगर बोलने वाला नायाब है तो नायाब को क्या कहोगे? मुतकल्लम। क्या कहोगे? मुतकल्लम। कलाम करने वाला कौन है? नायाब। और नायाब के मुंह से निकलने वाले कलमे, वो किसके कलमे हैं? नायाब के कलमे हैं। वो नायाब के कलमे हैं। नई वाली केड़ी गल है? वो किसके कलमे हैं? नायाब के कलमे हैं। नहीं कौन कहता? कलमियां तो लोग फांसी चढ़ जाते ने। इन्हें आखा सी इनू मार दियो। यही बात है ना? इसने कहा था, पूछते है जज, आख्या सी तुम आओ जी, मैं आख्या सी, चलो जी इन्हू भी सजाए मौत। कलमे की वजह से, आप तुम्हारे कलमों की वजह से तुम फांसी चढ़ जाते हो। तुम कहते हो नहीं। अगर मुतकल्लम नायाब है तो नायाब के अंदर से निकलने वाले कलमे किसके हैं? नायाब के। समझ आ गई? और अगर मुतकल्लम खुदा है तो खुदा के अंदर से निकलने वाला कलमा किसका है? खुदा का। और निकलने से पहले अगर खुदा नहीं बोलता, मुतकल्लम नहीं बोलता, तो वो कलमा जो है, खुदा तो है ही रूह ना। यूहन्ना 4:24 में साफ लिखा है कि खुदा रूह है। खुदा क्या है? खुदा रूह है। वो तो हमारी तरह मिट्टी का जिस्म नहीं रखता, वो तो गोश्त पोश्त नहीं रखता। मेरी बात की समझ आ रही है? तो मैं आपसे अर्ज कर देना चाहता हूं, अगर खुदा नहीं बोलता, मुतकल्लम खुदा है, अगर वो नहीं बोलता तो वो कलमा उसके नफ्स का, उसके जिस्म का, उसके रूह का हिस्सा है या कि नहीं है? और अगर वो उसके रूह का, उसके नफ्स का हिस्सा है तो कलमा खुदा है या कि नहीं? और जब वो उसमें से निकला, यूहन्ना पहले बाब की 14वीं आयत में लिखा है ना कि कलमा मुजस्सम हुआ, और जब वो उसमें से निकला तो ये कलमा शख्सी हो गया। नथु ने भी सुन लिया, फतू ने भी सुन लिया। शख्सी हुआ या कि नहीं हुआ? लेकिन इससे पहले ये नफसी था या कि नहीं था? ये नफसी था। ये क्या था? नफसी था, यानी कि उसके नफ्स का हिस्सा है। और यही बात है, जब ये शख्सी हो गया, जब ये शख्सी हो गया, तो मुझे ये बताओ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ अरेज हो जाने, डिलीट हो जाती ने? नहीं, हमारे अंदर से ये डिलीट तो नहीं ना होती।
क्यों जी? नहीं होंदियां। यही बात थी, यीशु कहता था मैं बाप में हूं, मैं बाप में, मैं जो उसका कलमा हूं, मैं उसके अंदर रहता हूं। और जो उसने कहा कि बाप मुझ में है, इसका लफ्जी मानी ये था कि ये जो इंसानी जिसे मैंने ओढ़ा हुआ है, इसमें रूह खुदा, कलमा खुदा, रूह खुदा की सूरत में इसके अंदर रहता है। अब समझ आई बात की या कि नहीं? आ गई? आगे चलिए। और फिर वो लोग जो ये कहते हैं कि उसमें दो रूहें थी, एक इंसान की, और समझ लो मेरी बात को, अगर वो मखलूक रूह है तो वो तो पाक हो ही नहीं सकती, और अगर पाक नहीं हो सकती तो खून बहा नहीं सकती, तुम्हारे लिए कफारा नहीं दे सकती, तुम्हारे लिए कफारा नहीं दे सकती। और अगर तुम्हारे लिए कफारा नहीं दे सकती और उसने खून बहा दिया तो तुम्हारा कफारा ही नहीं जे, अन्य हो, तुम्हारा कफारा नहीं है। दो रूहें बताने वालों, तुम्हारा कफारा नहीं हुआ, तुम्हारे गुनाह कायम है, तुम्हारे गुनाह बड़े आलम बनते हो, अकल है नहीं मासा तुहाडे च, बड़े आलम बनते हो। पहले वो नबियों पर नाज़िल होता रहा और आखिर में मुकद्दसा मरियम के बतन में तजस्सुम लेकर के इंसानी मेयार के मुताबिक इंसान के बराबर हो गया, फिर हमारे दरमियान रहा, फिर हमारे दरमियान। और अब मुझे बताओ कि वो जिस्म जिसमें खुदा बाप बेटा और रूह कुद्दस रहते थे, उसी जिस्म को खुदा बाप कहा गया है ना। और अगर यीशु सलीब पर कहता है क्या बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता, पिछली दफा भी ये मैसेज था, ओए हाथ नीचे कर, तो क्या वो एक इंसानी रूह हो गई है? क्या वो इंसानी रूह हो गई? इन अंधों को ये पता ही नहीं है, तालीम इनकी पता नहीं, ढाई जमाता पढ़े नहीं होंगे, नवे नवे फलसफे कड़े होंगे ने, इन्होंने भाई बने फिर दे। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं फिलिपियों 2 की 6 और 7 आयत में, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, किसकी सूरत पर वो था? खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को क्या कर दिया? ये है खाली हयादतुन एकोनूस, यूनानी के लफ्ज से ये इस्तिलाह ली गई, ये है उसने खाली कर दिया। और खादम की सूरत, शिगिरदां दे भी पैर तो मुंडिया दा सोना, शिगिरदां दे भी। हाँ, अज पादरी शारबानी वाले दिन अपनी बुढ़ी के पैर धोने शर्म समझते हैं, शर्म होनी चाहिए वड्डे पादरियां नूं। उसने किसके पांव धोए? शागिर्दों के। था वो क्या? खुदा। था वो क्या? खुदा। और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर के अपने आप को पस्त कर दिया। एज ए फिलॉसफी अपने आप को क्या कर दिया? मैनू उन्हां पादरियां दा भी बड़ा गुस्सा है जिन्होंने आउंदा जांदा कख नहीं ते गलत फिलॉसफियां लोगों को पेश करते हैं। छड्ड दो अपनी खिदमत जे तुम यीशु के बारे नहीं समझ सकते, नहीं समझा सकते। लिहाजा यीशु मसीह की शख्सियत दोहरी तो थी, ये मैं इकरार करता हूं। दोहरी किस तरह से? यानी वो कामल खुदा भी था और कामल इंसान भी था। चूंकि उसमें खुदा की रूह मौजूद थी कलमे की सूरत में, और ये अलो से निकला है अलूहियत का लफ्ज। इतने बड़े जी तू पहले अलूहियत ते ठीक कर ले, आपनू पता कोई नहीं कि मसदर की है, तेरा मुश्तक की है। मेरी बात की समझ आ रही है? और अलो में
7 रूहें हैं खुदा में, कामलियत की ये निशानी है 7 रूहें। और मैं अब इसके ऊपर 7 रूहों पे बात नहीं करूंगा, मैसेज लंबा हो जाना है। यीशु मसीह में अलोहीम की 7 रूहें थी, इसलिए तो हम कहते हैं कि उसमें अलूहियत की सारी मामूरी मौजूद थी। अलूहियत की सारी मामूरी। हाँ, मैं कलाम नहीं सुनाता, मैं सेमिनरी करवाता हूं तुम्हें। सेमिनरी में भी ये थॉट्स नहीं दिए जाते। सेमिनरियों वालों को भी जाकर के सवाल कर लो, उनको पता ही नहीं बेचारों को। बात की समझ आ रही है? तो मैं आपसे अर्ज कर देना चाहता हूं, इसके अंदर खुदा की 7 रूहें हैं। वो ये साया में लिखा है 11वें बाब में। निकालो जरा, निकालो ये साया 11वां बाब। शिबा नूं मैं इस बारे नहीं कहता कलाम पढ़न वालों कि अगली बारी गुस्सा करके आवे ही ना। मैं कहना कम से कम सुन ले, भावें गुस्सा ही करके सुन ले हैं, तो बाइबल लैके आया कर, तेन भी पता लगे कि दुनिया कितने रही है। यहाँ पे लिखा है यसी के तने से कंपल निकलेगी। किसके तने से? तना किसका है? यसी। तो उसमें से क्या निकल रही है? कंपल। ये कंपल है तो पीछे दरख्त होना जरूरी है। ये कंपल है, अगर कंपल है तो उसके पीछे दरख्त होना चाहिए या कि नहीं? दरख्त क्या है जी? यसी। तना क्या है? और आगे लिखा उसकी जड़ों से एक बार आवर शाख पैदा होगी। जड़ों से बार आवर शाख पैदा। और आगे खुदा की 7 रूहें हैं इसके अंदर। पहले नंबर पे खुदावन की रूह पर ठहरेगी, दूसरे नंबर पे हिकमत, तीसरे नंबर पे खिरद, चौथे नंबर पे मसलत, 5वें नंबर पे कुदरत की रूह, 6ठे नंबर पे मार्फत और 7वें नंबर पे खुदावन के खौफ की रूह। यस्सु में यानी कि ये जो था ना, ये जो था क्या था? यस्सी के तने की कंपल, इसमें क्या थी? खुदा की 7 रूहें मौजूद थी। खुदा की 7 रूहें मौजूद थी। मेरी बात की समझ आ रही है? तो बात असल में ये है, इसके अंदर 7 खुदा की 7 रूहों का मौजूद होना, इसको कामल खुदा जाहिर करता है। इसको क्या जाहिर करता है? कामिल खुदा। और इंसानी जिस्म ओढ़ने और इंसानी रवैयों के बराबर हो जाने की वजह से ये कामल इंसान कहलाता है। यानी कि ये 2 जातों का मजमूआ है। यानी कि ये कामिल खुदा भी है और कामल इंसान भी है। और जेड़े समझते ना कि वो सिर्फ इंसान ही सी, डुब के मर जाओ। अगर तुसी कहंदे कोई जे इंसानी रूह सी ते खुदा दी रूह सी, तुम्हें तो अकल ही नहीं है, तुम्हें तो समझ ही नहीं है कि वो कलमे खुदा होने के नाते खुदा में भी रहता है और इंसानी जिस्म में भी रहता है। इंसानी जिस्म के नाते, उसमें रहने के नाते वो इंसानों जैसे काम करता है। उसमें इंसानी जबीलतें पाई जाती हैं। उसको भूख लगती है, उसको प्यास लगती है, वो थकता है, उसे नींद भी आती है। लेकिन खुदा होने के नाते वो ऊँगता भी नहीं। खुदा होने के नाते वो भूखा भी नहीं होता। खुदा होने के नाते वो थकता भी नहीं। मेरी बात की समझ आ रही है? यानी कि यहाँ पे हमें 2 जातों का मिलाप मिल रहा है। हमें 2 जातें मिल रही हैं। हमें क्या मिल रही हैं? 2 जातें हैं जो कि कह रही हैं कि मैं और बाप एक हैं। मैं और बाप क्या हैं? गलती समझ आ रही है? निविदा तेन भी आ रही है? तू तो थले आऊं मूँह किया तो जिवें तेन समझ नहीं आउन दी।
अच्छा जी, जिसको समझ नहीं आ रही वो जरा हाथ खड़े करो। नहीं आ रही है? इन्हों नहीं आ रही। अच्छा, इन्हों आनी नहीं चाहिए। हाँ, मैं आपसे अर्ज ये करना चाहता हूं, पहले खुदा अनदेखा था। पहले खुदा क्या था? अनदेखा था। अब क्या खुदा देखा? अब खुदा क्या है? कैसे देखा है? निकालें जरा दूसरा करंथियों उसके 2 बाब की चौथी आयत, 4 बाब की चौथी आयत है सारी, मैं भूल गया भाई। दूसरा करंथियों 4 बाब की चौथी आयत का हिस्सा बे है। चलो पढ़े, जो निकाल लेता पढ़ ले। यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। आमीन। मसीह किसकी सूरत है? खुदा की सूरत। मसीह किसकी सूरत है? खुदा की सूरत। ओए उठ, उठ के खलो, उठ उठ उठ। इनू किन्ने लोग जानते ने? सारे जानते ने। क्या नाम है इसका? शाइन। मैं कहता हूं ये शाइन नहीं है। मैं ये साबित कर सकता हूं, शाइन तो इसके अंदर है। शाइन तो इसके अंदर है। उस शाइन की वजह से जो इसके अंदर है उसको तुम्हारे ऊपर जाहिर करने के लिए, उसकी वजाहत के लिए ये चेहरा दिया, ये खद्दो खाल इसको मिले। बात की समझ आ रही है? अगर कोई समझता है ना कि ये जो दाढ़ी रख के बैठा हुआ ये नायाब है, ये नहीं नायाब। नायाब तो इसके अंदर है। अगर कोई समझता कि ये लारेंस है, लारेंस नहीं है। अगर वो लारेंस इसमें से निकल जाए फिर ये खलो सकता है? नहीं खड़ा हो सकता ना। तो मसीह किसकी सूरत थी फिर? खुदा की। यानी कि जिसमें इंसानी है उसमें कौन बसता है? खुदा। और यहां पर उसने लिख दिया ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है। कुलसियों पहले बाब की तरह 15वीं आयत को भी पढ़े। कुलसियों पहले बाब की 15वीं आयत को पढ़े। वो अनदेखे खुदा की सूरत, वो अनदेखे खुदा की और तमाम मखलूकात से पहले मौलूद है। क्या है जी? और मौलूद के लफ्जी मानी ये नहीं है कि वो खलक किया गया। मौलूद के लफ्जी मानी है पेट का बोझ जो के बाहर आ जाए। पेट का बोझ जो के बाहर आ जाए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं भी कामल तौर से नहीं बता सकता उसकी अलवियत के ताल्लुक से। ये मेरी बात को सुन लो, क्योंकि मैं भी इंसान हूं। बेशक मैं बहुत इल्म रखूं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर उसका इल्म मेरे साथ शामिल ना हो तो मैं आपको मुतमय्यन नहीं कर सकता। मैं आपको मुतमय्यन नहीं कर सकता। ये जो लिखा है ना, मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है, ये कह रहा था जिस्म यस्सू का। मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है। और ये साबित करना चाहता था यस्सू नूं पानी ते चलन दी केड़ी जरूरत पई दी? इनू नहीं सी कश्ती लभदी? कश्ती मिल इनू लभ सकती सी या कि नहीं? पानी पे चल करके आ रहा है। कहाँ चल के आ रहा है? हाँ, और शागिर्द समझे ने भूत है भाई। ये क्या बताना चाहता है कि तुम्हारे वो जो तौरेत का पहला बाब है उसकी पहली आयत में जो लिखा कि खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी, वो मैं ही हूं। मैं पानी की सतह पे चल रहा हूं। ये क्या बताना चाह रहा था कि वो जो खुदा की रूह पानी की सतह पर क्या करती थी? मैं जिस्म समेत तेरे ते चलन दिया ना। समझ आ रही है? लोगों को ये कहता है, ये छूता है कोड चला जाता है। इनू नहीं लगता। बड़े बड़े नबी कोड़ी के करीब से भी नहीं गुजरते थे, लेकिन ये उनको छूता है।
اور جیسے ہی یہ چھوتا ہے اس کا کوڑ ضائع ہو جاتا ہے، اس کا کوڑ ختم ہو جاتا ہے۔ اندھوں کو کہتا ہے کہ تمہارے ایمان نے تمہیں اچھا کر دیا، ان کی آنکھیں آ جاتی ہیں۔ ایک انا ہوندا ہے اور او انا کی ہے جنم دا انا بچارا، او دے ڈیلے ہی کوئی نہیں، اے والے اس کے آئی بال نہیں ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ زمین پہ تھوکتا اور وہ تھوک کر کے مٹی گلی کر کے اس کے آنکھوں میں لگاتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ کتنے جا کے تو ہے شلوک دے ہوتے جا کے تو ساڈیاں اکھیاں مٹی پی جائے اسی ترن پھرن دے قابل نہیں رہندے، اکھیاں مل مل کے اکھیاں لال کر لینے۔ یہ اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ شلوک کے ہوش میں جا کر کے دو لے ہیں۔ آفتاب تو لے کے گیا سن پھڑ کے ہیں؟ کون لے کے گیا؟ خود ہی گیا۔ اس کی آنکھیں بن گئی تھی، اس نے اس کی آنکھیں بنائیں، اس نے اس کی آنکھیں مٹی سے بنائی، ثابت کیا کہ وہ باپ جس نے آدم کو مٹی سے بنا کر کے اس میں روح پھونکی وہ میں ہی ہوں۔ وہ کیا ہوں؟ میں ہی ہوں۔ انہوں نے عقل ہی نہیں آئی، وہ تو آدھے سن کہ اپنے آپ خدا دا بیٹا کہہ کے خدا دے برابر بناؤں اینو سلیب تے چاڑنا۔ انے اج بھی وہ یسوع مسیح نو گالاں کٹ دینے تے جتیاں کھا رہے ہیں نا مسلماناں کولوں۔ میں صحیح بات کر رہا ہوں، یہ میری بات کو سنو۔ کلمہ خدا میں سے نکلا، کہاں سے نکلا؟ اور جسم لیا، اس نے مجسم ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ہاں، مخلوق نہیں بنا، مجسم ہوا، جسم لے رہا ہے، جسم اوڑھ رہا ہے اور انسان بن رہا ہے، مگر پھر بھی کام خدا جیسے کر رہا ہے۔ کام کے جیسے کر رہا ہے۔ خدا میں سے نکلنے کے سبب سے خدا ہی اس کا باپ ٹھہرا یا کہ نہیں ٹھہرا؟ اور وہ باپ کا اکلوتا بیٹا پھر کہلایا یا کہ نہیں؟ اکلوتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ او دے وچوں یسوع تو علاوہ اور کچھ نکلیا ہی نہیں، اس میں سے یسوع کے علاوہ اور کچھ نکلا ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی روح القدس، اور روح القدس تو صادر ہوا۔ اگر روح القدس بھی اس میں سے نکلتا، اس میں سے، تو پھر روح القدس کا بھی کوئی نام ہوتا، پھر روح القدس کا بھی کوئی نام ہوتا۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ روح القدس صادر ہوا، مجسم نہیں ہوا۔ کیا نہیں ہوا؟ ہاں، اور اگر روح القدس مجسم ہوتا تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی نام ہوتا، اور پھر یسوع اکلوتا نہ کہلاتا۔ پھر وارث ایک نہیں دو ہوتے، خدا کے وارث۔ ہاں، اور یسوع اکلوتا پھر نہیں رہتا، یسوع پھر اکلوتا، مگر خدا کا شکر ہو کہ اس کا نہ ایسا ارادہ تھا، نہ ایسی سوچ تھی، کس کی؟ خدا کی۔ خدا کا ارادہ یہی تھا کہ وہ اپنے واحد کلمے کو انسان بنا کر کے بھیجے تاکہ وہ اس کے جلال کا پرتاؤ ہو، تاکہ وہ اس کے جلال کا اور اس کی ذات کا نقش ہو کر کے سب چیزوں کو جو فرشتوں اور انسانوں کے گناہ کرنے کے سبب سے ڈول رہی تھی، جھول رہی تھی، اپنی قدرت کے کلام سے وہ سنبھالے، اپنی قدرت کے کلام سے کیا کرے؟ پس وہ گناہوں کو دھو کر کبریا کی دینی طرف جا بیٹھا۔ کیا کرنے آیا تھا؟ گناہوں کو دھونے۔ ہاں، غزالہ تو نے وہ کپڑے دھونے والی رکھی ہوئی ہے نا نوکرانی، وہ کیا کرنے آتی ہے؟ کپڑے دھونے آتی ہے نا۔ یہ کیا کرنے آیا تھا؟ یہ گناہوں کو دھونے آیا تھا نا، یہی بات ہے نا۔ اور گناہوں کو دھو کر کے کبریا کی دینی طرف چلا گیا، بیٹھ گیا۔ کہاں بیٹھ گیا؟ وہ خدا میں سے نکلا، اس لیے وہ خدا کا بیٹا ٹھہرا اور ہے، اور یہی وجہ ہے۔ زبور اس کے 2 باب کی پہلی 2 آیتوں کو پڑھو،
उसमें दाऊद क्या कहता है, जबूर निकालो जरा, कौमें किस लिए तैश में हैं और लोग क्यों बातिल ख्याल बांधते हैं खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ। जमीन के बादशाह साफराई करके और हाकम आपस में मशवरा करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से क्या करें। हाँ, ये बातिल ख्यालात हैं। 12वीं आयत में वो क्या कहता है, बेटे को चूमो, बेटे को, ऐसा ना हो कि वो कैर में और तुम रास्ता में हलाक हो जाओ, क्योंकि उसका गजब जल्द भड़कने को है। मुबारक है वो सब जिनका तवक्कुल उस पर है। और ये जो तुम कहते हो ना कि उसमें एक इंसानी मखलूक रूह थी, तुम बेटे को चूम नहीं रहे, तुम बेटे को चूम नहीं रहे, बल्कि क्या कर रहे हो, बेटे को रद्द कर रहे हो। बेटे को क्या कर रहे हो, रद्द कर रहे हो, और खुदा के गजब का निशाना बन रहे हो। खुदा के गजब का, क्योंकि यहाँ लिखा बेटे को चूमो, ऐसा ना कोई कैर में और तुम रास्ता में हलाक हो जाओ, क्योंकि उसका गजब जल्द भड़कने को। भावें तुसी बड़े पादरी हो, तुहाडा प्यो भी पादरी सी, तुहाडा दादा बिशप सी, और तुसी गजब दे थल्ले हो। तुम किसके नीचे हो, गजब के नीचे हो। और अगर तुम गजब के नीचे हो तो तौबा कर लो। क्या कर लो, तौबा करके मसीह की रूह को अपने अंदर आने दो, जैसा कि रोमियो 8:9 में लिखा है, जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका। जब तुम ये कहते कि उसमें मखलूक रूह थी, तो तुम उसे अपने अंदर नहीं ले सकते, तुम उसे अपने अंदर नहीं ले सकते। लेकिन जब तुम उसे तसव्वुर करते हो, उसे मान लेते हो, उसे कहते हो कि तू खुदा का बेटा है, खुदा में से निकला और आया है, और मैं चाहता हूं कि तू मेरे अंदर, मेरे दिल की चरनी में पैदा हो जाए, वो तेरे दिल में आ जाता है। वो कहाँ आ जाता है? हाँ, मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूं, रोमियो 8:9 के मुताबिक अगर हम उसे, यानी कलमे को, जिसका नाम यीशु मसीह है, यानी मसीह के रूह को चूमते हैं, तो वो हमारे साथ एक रूह हो जाता है। हमारे साथ क्या होता है? और जिसके साथ वो एक रूह होगा उसके अंदर होगा, जिसके साथ वो एक रूह होगा उसके क्या होगा? और अगर वो उसके अंदर होगा, वो उसका दूल्हा होगा। क्या होगा? उसका दूल्हा। गल समझ आई कि अगलियां भी भुल गई? समझ आ गई है? तो फिर उसके बारे में ये कहना कि उसमें मखलूक रूह थी, ये गलती है या कि नहीं? गलती नहीं, मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, गुनाह है बहुत बड़ा। क्या है? बहुत बड़ा गुनाह है।